तेरे को कॉर्डलेस चाहिए अटेंडेंस शीट किसके पास है Hello. इंटरनेट कर दीजिए, इंटरनेट का कर दीजिए। So good morning one and all. We are ready with the resource person. Probably we need to wait for a few more minutes so that online and offline participants can join us. I request the online participants, if they have any kind of query for the last 2 days, please drop down your message in the chat box so we can go through it one by one. So what we have learned in last 2 days. So we started with the developing the search strategies and we took help of AI as well. So we learned how to develop the search string. That is very crucial part of your bibliometrics and systematic reviews. Once we have developed the search string, we analyze the data that we have curated using bibliometric software, and we have seen that all the descriptive analysis up to the level of keyword analysis, word analysis we have performed. So in last evening session, we have tried to develop the first version of our draft paper, and we have included the descriptive analysis part, the basic informations, authors-wise contributions, country-wise contribution, institutions-wise contribution, most cited document, keyword frequency analysis, tree map, and its related
analysis. We have grabbed the first paper. लेकिन कुछ एनालिसिस और हैं जो हमको करनी है, ठीक है? And that is not only the quantitative analysis, it not only measure in terms of the frequency, but it is a step of systematic review. So I'm going to start, because systematic, there are two approaches to write systematic reviews paper. One, along with the bibliometric studies. And yesterday I have shown my paper that has been accepted. So it has both. It has systematic reviews as well as it has bibliometrics analysis. So mainly descriptive analysis, it is not going to publish. So you should include the systematic reviews as well. Although most of the domain, it is written independently and it takes time. Okay. So today we are going to start the core area of systematic reviews on the same data sets I am performing. Okay. Later on, I will tell you once we perform this action, I'll tell you that how it is differentiate from the bibliometrics studies. One thing you should remember at the beginning itself, those who are talking that please train us about systematic review. So in systematic review, one can understand in simple language that in systematic review, there are two parts. One is the descriptive analysis. It is nothing but a bibliometrics analysis that we perform till date. तो systematic review पे लिखेंगे तो ये जो सारे पार्ट हैं ये आपको लिखने ही है. That is compulsory. But the rest of the thing I am going to perform, that is the part of systematic review. The second part is the thematic analysis and literature classification. ओके अभी वर्जन 1 में अभी और चीजें ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है? So that is the core of systematic reviews is thematic analysis and literature classification. तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं how to perform thematic analysis. हम बोस व्यूअर भी यूज करेंगे and we are going to use our earlier software bibliometric biblioshini दोनों करता है, इसीलिए मैंने बोला था अप टू दिस लेवल आप केवल करिए, आगे का मैं बताऊंगा हाउ वी कैन परफॉर्म इन द सेम डेटा सेट. अगर इस तरह आप सिस्टमैटिक रिव्यू, मेनी ऑफ पीपल दे डू सिस्टमैटिक रिव्यू, दे डोंट अंडरस्टैंड, they understand that only the literature classification is the systematic review. I'll tell you how to classify. Now there are lots of AI tool have been developed. Okay. Yes, for the literature classification, we need to identify the empirical studies and then we need full text of those studies. वो मैं बताऊंगा later afternoon session में, evening section में. First आज हम लोग करने जा रहे हैं, it's a part of systematic reviews. In the same data sets, same way, जिसको हम बोलते हैं, first part we have done. So I'm going to write bibliometric systematic reviews. Same data sets I'm going to perform a systematic review as, and that is the core part is the thematic and literature classification. So first we learn how to perform thematic analysis. That is very, very important for us. हाँ, yes sir. हाँ, queries chat box में आ गया है, तो मैं एक एक पढ़ ले रहा हूँ. ठीक है? How to identify duplicates using Zotero? Simply, the first question is how to identify duplicates using Zotero. It's very simple. आपने data export किया, import in that Zotero software. Let me demonstrate you. I'm going to share my slide.
एक एक क्वेश्चन लेके कर देते हैं. क्वेश्चन इतने ज्यादा हो जाएंगे तो वी कैन नॉट एबल टू कवर. But let me tell you how we can. Jotero, Mendeley, anything you can use it. It is not meant for that, but we can use that software in a different way. Jotero is basically a reference management software. It is mainly used for reference management purpose. It has inbuilt function that is finding the duplicates. So it's very easy that when the duplicates comes when we are going to work with the merged data sets. आपने स्कोपस से भी लिया, वेब ऑफ साइंस से लिया, एंड आपने अदर डेटा सेट्स. तो जब आप मर्जिंग करोगे तो हमने देखिए काफी इसमें काम किया है. ये देखिए मैं सिस्टमैटिक रिव्यूज काफी मैंने किया है, और ये अभी रिसेंट मैंने किया था सिस्टमैटिक रिव्यू, एंड दैट हैज बीन पब्लिश्ड आल्सो. तो सिस्टमैटिक रिव्यू करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है. बिब्लियोमेट्रिक्स थोड़ा सा आसान है. नाउ आई हैव डन व्हाट वी नीड टू बी डन. हाँ, यस, बेस्ड ऑन द रिसर्च क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू ऐड टेबल्स. जो और एनालिसिस किए हैं वो टेबल्स इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, लेकिन हमने जो फर्स्ट पार्ट कर लिया है दैट इज एनफ फॉर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. आई एम गोइंग टू डू द थीमेटिक एनालिसिस, दैट हाउ द थीम वाइज द कॉन्सेप्ट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको आप सीख जाओगे, एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म थ्रू गोस व्यूअर, जिसको बोलते हैं थीमेटिक एंड क्लस्टर एनालिसिस और टॉपिक मॉडलिंग. सिस्टमैटिक रिव्यूज में बहुत कम लोग टॉपिक मॉडलिंग कर रहे हैं. आप करोगे तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे टॉपिक मॉडलिंग का. मैं करता हूं अपने स्टडीज में, और इसलिए वो पेपर हमारा एक्सेप्ट होने का चांस ज्यादा रहता है. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू हैव थीमेटिक एनालिसिस, और उस डेटा को हम लोग यूज करेंगे फॉर द राइटिंग. सो सिंपल, यू गो टू द फाइल, import here, select your file and import in the system. That's it. जो भी डुप्लीकेट्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा. जैसे जोटेरो में मैं दिखाऊंगा आपको, पहले से ही मैंने कर रखा है. फिर से मैं अगर डालूंगा, ओके, अभी तो मेरे डुप्लीकेट्स आइटम में कुछ भी नहीं आ रहा है. सेम आइटम हमने फिर से आइडेंटिफाई किया. व्हेन आई क्लिक ऑन दैट, देखिए इतने आइटम डुप्लीकेट्स में आ गए. ठीक है, अपने आप आ जाएगा. दिस इज ऑटोमेटिकली. इस सॉफ्टवेयर का पर्पस ये था नहीं, बट वी कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर इन ए डिफरेंट वे टू फाइंडिंग द डुप्लीकेट्स. ऑल्दो एक्सेल में भी ये तरीका है. एक्सेल में अगर आप देखोगे तो डुप्लीकेट्स का है वो करने का, बल्कि वो एग्जैक्ट सही नहीं करता. दिस सॉफ्टवेयर क्योंकि ये मेटा डेटा को यूज करता है. अब देखिए इसमें डुप्लीकेट्स आ गए. यहां से डुप्लीकेट आइडेंटिफाई करना भी आसान होता है. अगर आपको डुप्लीकेट्स मर्ज करने हैं तो यहाँ पे सिंपली जैसे से क्लिक करोगे, यहाँ पे बता देगा किसको लेना है, फर्स्ट को लेना है, सेकंड को लेना है. यहाँ पे दिया रहेगा ये फर्स्ट, ये कल का है, ये कल का है, ये आज का. तो किसको लेना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट, मर्ज. जैसे से मर्ज करते रहोगे ये मर्ज होता रहेगा, और डुप्लीकेट अपने आप रिमूव हो रहा है. ठीक है. नो नो नो, यहां पे अगर एक तरह के आइटम है, सपोज दैट यू आर वर्किंग ऑन ओनली द रिसर्च पेपर, तो व्हाट द सॉफ्टवेयर डू, यहाँ पे मर्ज ऑल का ऑप्शन आ जाएगा. एक ही साथ वो क्या करेगा, सारे डुप्लीकेट्स को मर्ज करके एक ले लेगा, फर्स्ट वन. ठीक है. तो दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट्स. ठीक है. द सेकंड क्वेश्चन इज Ankush Sharma. As a researcher of statistics, I am unable to find such type of bibliometric studies in the core field of statistics. If you are not unable to find that, it means that you have searched Google by your topics. You have to search a database like Scopus or Web of Science
better to search Scopus. आप केवल डालिए कीवर्ड bibliometrics, scientometrics, informatics and then filter by subject. वहां पे स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक लगा दीजिए. ऑल द बिब्लियोमेट्रिक्स जो स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स फील्ड में हुआ है सबकी लिस्ट आ जाएगी. बिकॉज यू आर सर्चिंग थ्रू योर टॉपिक. आपको सर्चिंग कैसे करना है? बाय सर्चिंग स्ट्रिंग, सर्च स्ट्रिंग. आप गलत तरीके से सर्च करोगे, यू विल नेवर फाइंड एनी स्टडी. ठीक है. फिर माय क्वेरी इज I have data sets of only 102 items. It's okay. When I imported my data sets on Jotero, there was no retracted. तो नहीं होगा. I keep saying that कि अगर retracted नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा, अगर होगा तो दिखाएगा. It is not guaranteed that retracted नहीं है तो अच्छा है ना. तो आप लोग सुनिए जो मैं बात कर रहा हूँ, और कोई इसमें और क्वेश्चंस नहीं है. Whatever I am saying, just listen. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि if there is no retracted item, तो उसमें नहीं आएगा. It is the capability of this software. Retraction रहेगा तो वहाँ बता देगा. Yes. हाँ बोलिए. मेंडले में भी आता है. सेम प्रोसेस है. मेंडलो में भी इंपोर्ट करेंगे सेम तरीके से, वहां भी डुप्लीकेट्स आ जाते हैं. सेम प्रोसेस. वो सॉफ्टवेयर इज वेरी गुड बिकॉज आई ऑलवेज प्रमोट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. मैं पेड सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करता. ठीक है. तो मैं जोटेरो यूज कर रहा हूँ. अदरवाइज मेंडली पे भी मेरा स्पेशलाइजेशन, मैं मेंडले का एडवाइजर भी हूँ, तो मेंडले पे मेरा स्पेशलाइजेशन ज्यादा अच्छा है. लेकिन मैं हमेशा फ्री सॉफ्टवेयर को वो करता हूँ ओपन एक्सेस मूवमेंट में. ठीक है. तो इसलिए जोटेरो इज मोर, मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा है. बिकॉज मेंडले इज फ्री सॉफ्टवेयर बट जोटेरो इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. जोटेरो में इतनी चीजें हम कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते अपने. जोटेरो इज समथिंग, उसका अलग एक सेशन ही होना चाहिए रिसर्चर के लिए, हाउ टू यूज जोटेरो और मेंडले सॉफ्टवेयर. इट इज नॉट ओनली फॉर रेफरेंस मैनेजमेंट, इट जनरेट्स अ वेरी पावरफुल डेटा. हम डेटा का विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं. ठीक है. तो जोटेरो में बहुत तरह की पावरफुल कैपेबिलिटीज हैं. इसमें बहुत तरह की कैपेबिलिटीज इसमें हैं और लोग यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस. जोटेरो इज वेरी गुड सॉफ्टवेयर. मेंडली भी अच्छा है, जोटेरो भी अच्छा है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शनैलिटी एसोसिएटेड विद इट. सो बहुत तरह का इसमें ऑप्शन है. मैं इसको सिखाने नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वी आर गोइंग टू लूज इट. ओके. तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे वोसवीवर. ओके. वी आर गोइंग टू डू द सिस्टमैटिक रिव्यूज along with the bibliometrics studies. Okay. So we are going to do the thematic analysis, cluster analysis and topic modeling. ये हम कर सकते हैं bibliometric सॉफ्टवेयर से भी, लेकिन bibliometric सॉफ्टवेयर का अप्रोच डिफरेंट है. वोसवीवर इज वेरी गुड इन दैट. वोसवीवर विजुअलाइजेशन ही नहीं करता, उसका पर्पस भी बहुत ही अच्छा है. although वोसवीवर इज नॉट मेंट फॉर दैट, लेकिन हम वोसवीवर से कैसे थीमेटिक एनालिसिस कर सकते हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा. यही इंपॉर्टेंट है. तो केयरफुली वी हैव टू गो वन बाय वन. ठीक है. सबने वोसवीवर डाउनलोड कर लिया है? ओके. जस्ट डाउनलोड इट. यू ओनली नीड जावा. ओके. तो जब आप वोसवीवर सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए यहां से. जस्ट डाउनलोड वोसवीवर 1.6.20 और Microsoft Windows. ओके. आप डाउनलोड कर लीजिए. है तो बहुत अच्छा है. ओके. मेक श्योर यू शुड हैव जावा इन योर सिस्टम. यहाँ पे अगर जावा जिसके इंस्टॉल्ड नहीं है
न्यू कंप्यूटिंग मशीन है तो उसमें जावा होता है, नहीं है तो यहाँ क्लिक हियर करके जावा अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। जावा, डाउनलोड जावा फॉर डेस्कटॉप, ठीक है। ये दोनों इसको सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इट इज नॉट अ इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर, यू वोंट रिक्वायर टू इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर, ओनली यू हैव टू अनजिप, ठीक है। तो सब लोगों ने अनजिप कर लिया इसको, मैं डाउनलोड भी कर ले रहा हूं, ये तो फिर आप कहोगे मेरा तो हो ही नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स अनजिप। तो बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड, थोड़ा टाइम भी लेता है, काफी दिखा रहा है, तो मैं इसको अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास वो प्योर सॉफ्टवेयर है, तो उसको अनजिप कर लीजिए, जस्ट अनटॉल करना है आपको। जिप फोल्डर, ये जिप है ना, जिप को जब बस क्या करिए, यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑल में जाइए, ठीक है, एज इट इज एक्सट्रैक्ट, तो आपके पास एक ऐसा फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। डन, you have already downloaded GIF folder, click on this extract all and then extract, तो यहां पे आपका एक इस तरह का एक फोल्डर बन जाएगा, सबके पास है ऑल आर, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में कुछ करना नहीं है, इस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इट वर्क्स विद द जावा। मेक श्योर जो जावा मैंने कहा है इट शुड बी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। अब इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट क्लिक ऑन wosviewer.exe, very powerful software, very good software, but it won't require any installation. Excuse me sir, Yes, excuse me sir, जावा कैसे डाउनलोड करना है सर? मैं तो बोल ही रहा हूँ कि जावा पहले इंस्टॉल कर लीजिए। सर कैसे, कहाँ से? अभी स्क्रीन दिखाई थी हमने आपको, तो वो मिस हो गई मेरी। तो आप मिस कैसे हो जा रहा है? It is shared in the group already. So already I have May I know who is said, this? Can you यहाँ पे please name स्क्रीन पे yourself? देखिए, यहाँ पे क्लिक हियर करेंगे तो यहाँ जावा का आ जाएगा। आप पूरे टाइम अटेंटिव रहेंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो Sir, आप we can सोचेंगे घर proceed. का भी हम काम कर लें। We और should proceed. There are ये भी many कर लें, तो it participants is who not are going to already work. with the WOSViewer software मैंने downloaded. पहले ही स्टेप बता दिया, इट्स वेरी इजी टू, इसमें कुछ नहीं करना, इट्स नॉट लाइक बिब्लियोमेट्रिक्स, बिब्लियोमेट्रिक्स में थोड़ा टाइम लगता है, बट दिस सॉफ्टवेयर वोंट रिक्वायर्ड एनी इंस्टॉलेशन। ये बस आपको हमेशा WosViewer की exe फाइल को खोलना, आपके पास एक सिंपल इंटरफेस, ब्लैंक इंटरफेस ऐसा दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है सबके पास है स्क्रीन? ओके, what we are going to do, we are going to perform the thematic analysis, ठीक है, थीमेटिक, क्लस्टर एंड टॉपिक मॉडलिंग। अगर आप अपने स्टडी में इंक्लूड, दिस इज द पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू। बिब्लियोमेट्रिक्स में ये लोग कम करते हैं, बट क्योंकि सिस्टमैटिक रिव्यूज भी है, और सिस्टमैटिक रिव्यूज में जो लिटरेचर क्लासिफिकेशन है दैट इज लास्ट स्टेज, तो उसका भी करेंगे अगर टाइम परमिट करेगा तो। क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएट, ओके, डन। Click on create a map based on bibliographic data, second option, ठीक है, based on bibliographic data, हो गया सबका? Then click next. Now we are at this dialog box, आपको सेलेक्ट करना है सेकेंड ऑप्शन, रीड डेटा फ्रॉम बिब्लियोग्राफिक डेटा फाइल। ये नोट कर लीजिए स्टेप, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑन ए डेटा सेट जो हमने डाउनलोड किया है, इसमें और ऑप्शन आते हैं, वी वर्क्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म टू।
हम इससे बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज कर सकते हैं, लेकिन हम इससे करेंगे नहीं। हमने बिब्लियोमेट्रिक स्टडी के लिए हमारे पास दूसरा सॉफ्टवेयर है। दिस इज विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। रीड डेटा फ्रॉम बिब्लियोग्राफिक डेटा फाइल, देन क्लिक नेक्स्ट। सबके पास ये स्क्रीन होना चाहिए। यू गॉट द स्क्रीन, ओके। नाउ डेटाबेस यू नीड टू, इट वर्क्स विद द स्कोपस, डायमेंशन, लेंस एंड पबमेड। हमारा डेटा सेट्स क्या है? वेब ऑफ साइंस। यहां पे क्लिक करना है ब्राउज पे। अब आपके डेटा सेट्स पे आपके जाना पड़ेगा, ठीक है। डेटा सेट्स जहां रखा है, फोल्डर आपका एकदम रेडी होना चाहिए, नॉट अ जिप फाइल। जिप फाइल में 2 फाइल है, 3 फाइल है, इट्स ओके, ठीक है। अगर आपका 500 या 1000 से ज्यादा है तो 1 2 3 करके फाइल बना होगा, सबको एक साथ ये ले लेता है, वहां जिप फोल्डर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे हम जाते हैं अपने, ये हमारा डेटा सेट्स है, 2 डेटा सेट्स है। अब मैं चेक कर लेता हूं कि किस डेटा सेट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने दोनों डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आई एम वर्किंग ऑन, ठीक है, सेव। इस पे मैं काम कर रहा हूं 16 वाले फाइल पे। मेक श्योर दैट यू शुड हैव राइट फाइल। मैं इस वाले पे काम कर रहा हूं, जस्ट आई विल अपलोड, ठीक है। दिस स्टेप इज ओके विथ ऑल ऑफ यू। हाँ, टेक्स्ट फाइल में ही हमने डाउनलोड किया, सेम फाइल। अगर फाइल है तो जिप फाइल नहीं चाहिए, 2 फाइल है तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, इट विल सेलेक्ट। 3 है, 4 है, 10 है, सबको एक साथ ले लेता है, मर्ज भी कर देता है। वहां पे आपको जिप बनाना पड़ेगा, यहां जिप बनाने की जरूरत नहीं है। इट टेक्स ऑल द फाइल्स एट में। पहले ये सॉफ्टवेयर में दिस फैसिलिटी वाज नॉट देयर, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग हमारे लिए होता था कि पहले हम एक दूसरे टेक्स्ट एडिटर में जाके मर्ज करते थे, देन वी यूज द सेम फाइल। बट नाउ दिस सॉफ्टवेयर इज, इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, इट टेक्स ऑल द फाइल, और उसके डेटाबेस के हर एक रिकॉर्ड का एक नंबर होता है, उसके हिसाब से वो मर्ज कर देता है। देन नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि साइटेशन इंफॉर्मेशन इसलिए इसमें नहीं आ रही है, ठीक है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है सारे एनालिसिस से। वी आर गोइंग फॉर कीवर्ड एनालिसिस, कोअकरेंस एनालिसिस। थीम कीवर्ड से हमेशा बनता है। अभी कर रहे थे ना, ऑथर कीवर्ड से ही सारा काम कर रहे थे, तो यहां भी हम ऑथर कीवर्ड से ही काम करेंगे, ओके। सबके पास ये डायलॉग बॉक्स है। इट टेक्स सम टाइम, अगर बड़ा डेटा सेट्स है तो, बट ये आएगा। अगेन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे अपलोड कर दिया डेटा सेट्स, 2 है तो दोनों फाइल को सिलेक्ट करिए। बट जो बोथ, अगर ज्यादा डेटा सेट्स है, अगर एक सिंगल फाइल में आपने डाउनलोड किया है तो ओनली 1 फाइल शुड बी सेलेक्टेड एंड क्लिक नेक्स्ट। आ गया सबका? रागिनी मैडम, हो गया आपका? इधर क्या दिक्कत दिखाई? थ्रेशोल्ड पे आप कहां पहुंच गई? एक स्टेप आगे ही चली गई आप। हाँ, ये स्टेप तो आ तो गया आपका। यू नीड दिस स्टेप, ठीक है। अभी स्टेप आगे मत करिए, इतना हरी में मत रहिए कि हमको डेटा हमको अभी चाहिए। One step ahead. So let's work. यहाँ पे आप क्लिक करिए को-अकरेंस एनालिसिस। थीमेटिक एनालिसिस ऑलवेज परफॉर्म बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए आया ऑल कीवर्ड्स, ऑथर कीवर्ड और कीवर्ड प्लस, ठीक है। कीवर्ड प्लस मींस बोथ द कीवर्ड। हम किस पे कर रहे हैं अभी तक सारा एनालिसिस? ऑथर कीवर्ड पे। तो यहां भी हम ऑथर कीवर्ड पे ही करेंगे, ठीक है। वहां पे कीवर्ड प्लस पे करेंगे तो यहां पे भी कीवर्ड प्लस पे करेंगे। मेक श्योर। लोग क्या होते हैं, बहुत से बिब्लियोमेटिक से लोग विजुअलाइज करके बता देते हैं, मैप देखने में अच्छा लगता है, बट उस मैप का मतलब क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कैसे उस मैप को हम लोग थीमेटिक एनालिसिस के लिए यूज करेंगे। इवन इट इज नॉट रिटन इन, ये सॉफ्टवेयर जिसने डेवलप किया है लूडो निकमैन ने, और इस सॉफ्टवेयर को केवल डेवलप करने में लेडन यूनिवर्सिटी ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, एंड ही गॉट मोर देन 50,000 साइटेशन। पूरी दुनिया में जितनी बिब्लियोमेट्रिक्स और सिस्टमेटिक रिव्यूज पब्लिश होते हैं, ऑल दे यूज दिस सॉफ्टवेयर। इसलिए इस सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा, और इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर, कोई पेड वर्जन नहीं। अब ये नहीं है कि इसका प्रो वर्जन, या दोनों सॉफ्टवेयर में देयर इज नो पेड वर्जन अवेलेबल, एवरीथिंग इज फ्री, और वेरी गुड एल्गोरिदम, वेरी गुड विजुअलाइजेशन। तो फ्री वाला सेलेक्ट ऑथर कीवर्ड, ओके। नाउ काउंटिंग मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। There is two type of counting method it has been given. One is the full counting and one is the fractional counting. आपको हमेशा करना है full counting. Means I want to have keywords from all the papers. मतलब एक कीवर्ड इसमें है, इसमें ही 3 कीवर्ड है एक ही आपके पेपर में, तो इट काउंट ऑल द कीवर्ड्स। अगर फ्रैक्शनल काउंटिंग लेंगे तो एट ए टाइम एक ही कीवर्ड को एक ही बार मिलेगा। तो हमको फुल चाहिए ना, अकरेंस एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो वी ऑलवेज सेलेक्ट फुल काउंटिंग, और यहां करेंगे नेक्स्ट। एक ही बार एक अकरेंस एक बार आ जाएगा तो फिर उसको नहीं लेगा। तो फ्रैक्शनल काउंटिंग में हमारी संख्या कम हो जाती है। वी वांट अकरेंस ऑफ फुल कीवर्ड्स, सो दैट कि सारे एक साथ आएंगे तभी तो हम एक थीम जनरेट कर पाएंगे। एंड नाउ थीमेटिक एनालिसिस, एआई आने से हमारा काम बहुत आसान हो गया। जो 4 साल 5 साल पहले जो मैं एनालिसिस करता था, तो मैं खुद से सोच के एक्सपर्ट एडवाइस से थीम डेवलप करता था। नाउ एआई कैन डू फॉर यू, बट यस एक्सपर्ट मैं वो भी प्रॉम्प्ट आपको सिखा के जाऊंगा, ठीक है। दैट मैं कितने महीने की प्रैक्टिस के बाद मैंने डेवलप किया द प्रॉम्प्ट टू हैव अ थीमेटिक एनालिसिस, ठीक है। देन यहां पे दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस स्टेप डिसाइड द थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे जितने नंबर्स जो कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स को आप विजुअलाइज करना चाहते हैं उसमें। अब इसमें कितना दिखा रहा है, कितने टोटल कीवर्ड्स थे? 1639, ठीक है। उसमें भी आया था 1639 कीवर्ड। ये डिफरेंस थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत आ सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आ भी सकता है। तो कितने टोटल कीवर्ड्स हैं हमारे पास? 1639 कीवर्ड से मैप जनरेट होगा। लेकिन ये कह रहा है कि अगर 5 कीवर्ड, मतलब ऐसे कीवर्ड जिनकी अकरेंस 5 या उससे ऊपर है, उसी को केवल विजुअलाइज करेगा। तो जब बड़ा डेटा सेट्स रहता है तो 5 इज ओके थ्रेशोल्ड, लेकिन छोटा डेटा सेट्स है तो ये कह रहा है कि केवल 40 जो कीवर्ड्स है उसी का मैप जनरेट करेगा। यानी जो मैप पीछे आएगा अभी, इट कंटेन्स ओनली द 40, वो दिखने में केवल 40 कीवर्ड्स दिखेगा। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा थ्रेशोल्ड, हम चाहते हैं कि ऐसे कीवर्ड्स भी जो दिखे जो एटलीस्ट 3 टाइम्स तो आए ही, 3 टाइम्स आए हैं, और छोटा डेटा सेट से इसका मतलब है उसकी एक वैल्यू। आपने देखा होगा बिब्लियोमेट्रिक्स सॉफ्टवेयर में कि वो सारे कीवर्ड की एक लिस्टिंग दिया है, सबसे टॉप और सबसे लोएस्ट, तो 1 कीवर्ड का भी उसने दिया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे कीवर्ड डिस्प्ले करें जो 3, जिसकी अकरेंस मिनिमम 3 हो, 3 से नीचे वहां 2 हो, 1 हो, नहीं डिस्प्ले हो। 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 का भी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए आप इसको 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। ये जैसे आप चेंज करेंगे, तो देखिए 4 मैंने किया तो 59 आ गया, और थोड़ा सा कम किया तो 93 आ गया, ठीक है। तो मैप जितना आप ज्यादा कीवर्ड लेंगे, मैप उतना ही अच्छा जनरेट होगा, ठीक है। तो हमने 93 कीवर्ड्स पे किया, आप चाहो तो कम भी कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे नेक्स्ट करिए, ये देखिए 93 कीवर्ड्स आ गया। मेक श्योर आपको लिखना है कि कितने कीवर्ड्स पे। ये देखिए सेम उसी तरह से अकरेंस की लिस्ट आ गई, ठीक है। बट यहां पे एक चीज और जनरेट करता है, इट जनरेट्स टोटल लिंक स्ट्रेंथ। इट जनरेट्स टोटल लिंक स्ट्रेंथ, ठीक है। टोटल लिंक स्ट्रेंथ ये जनरेट करता है, ठीक है। टोटल लिंक स्ट्रेंथ क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। टोटल लिंक स्ट्रेंथ इज ए पैरामीटर which decide how those keywords are closely connected। अभी मैं दिखाऊंगा उसको कैसे वो लिंक बनता है। अब देखिए दिस स्टेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिब्लियोमेट्रिक्स में हम क्या करते थे इन सॉफ्टवेयर, व्हाट वी डू दैट वी जनरेट टेक्स्ट फाइल, और जो कीवर्ड हमको लगता था कि रेलिवेंट नहीं है हम वहां से रिमूव कर देते थे। यहां इंडिया आया ना, यहां भी सेम आएगा रिजल्ट, बिकॉज सेम एल्गोरिथम इट यूजेस। जो वो सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम यूज कर रहा है ये भी यूज कर रहा है, बट दैट सॉफ्टवेयर इज नॉट जनरेटिंग मैप, उसका अलग है, इसका मैप अलग रहेगा, इसका पर्पज अलग। सो यहाँ पे इंडिया को अगर रिमूव करना है, इट्स वेरी सिंपल। हम इसमें क्या कर लेंगे, अनचेक कर देंगे, जो इररिलेवेंट लगेगा अनचेक कर देंगे। वहां पे हमको एक प्रोसेस के थ्रू रिमूव करना है। यहाँ सिंपली जस्ट लाइक इन माई टॉपिक, इंडिया इज द इररिलेवेंट कीवर्ड, क्योंकि इंडियन बेस्ड स्टडीज मैं कर ही रहा हूं, एंड जस्ट क्लिक फिनिश। ये डायलॉग बॉक्स आएगा, क्लिक यस, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह का मैप जनरेट होगा, क्योंकि मेरा डेटा सेट छोटा है इसलिए इस तरह का मैप जनरेट होगा। थ्रेशोल्ड वैल्यू मैं कम रख लूंगा तो हमारे पास, अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूं अपने हिसाब से, आपका रिजल्ट बिल्कुल अलग आ सकता है। मैं इसमें मैं 3 रखा था, मैं 2 रख रहा हूं। ठीक है, मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो यू विल गेट अ ब्यूटीफुल मैप। ये बस आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा मैप देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। टोटल लिंक स्ट्रेंथ मीन्स हाउ द नोड्स आर कनेक्टेड, हाउ द कीवर्ड्स आर कनेक्टेड एंड व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ। जितना टोटल लिंक स्ट्रेंथ अधिक होगा उतना हाईली कनेक्टेड होगा। बहुत अच्छे ब्यूटीफुल मैप जनरेट करता है, लेकिन इस मैप से केवल जनरेट करने से नहीं होगा, इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ इफ यू गो टू द, देखिए इसमें 3 तरह के विजुअलाइजेशन दिए हैं। ये मैप 3 मैप एट ए टाइम जनरेट करता है। वन इज नेटवर्क विजुअलाइजेशन, जिसका हमको काम होता है थीमेटिक एनालिसिस में। देन ओवरले विजुअलाइजेशन में कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देगा, ईयर वाइज ये बताएगा, एंड देन डेंसिटी विजुअलाइजेशन बताएगा। ये तीनों मैप का यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज वेरी पॉपुलर, एंड दिस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज फॉर, ये सिस्टेमेटिक रिव्यू का मैं पार्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो एवरीवन हैज दिस मैप डन, हो गया नहीं हुआ पीछे, डन। किसका नहीं हो रहा है, किसका नहीं हुआ है? मैप जनरेट हो गया आपके टॉपिक का, इट्स योर टॉपिक, ठीक है, हो गया। अब इसको समझते हैं, इट इज वेरी टेक्निकल बट लिसन केयरफुली जो मैं बोल रहा हूं क्या मतलब है। अब जैसे मैं एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ा टर्म्स था ना, तो जैसे ही मैं एनर्जी सिक्योरिटी पे अपना कर्सर ले जाता हूं, ठीक है, उस क्लस्टर को हाईलाइट करता है, ठीक है। ये इस सॉफ्टवेयर की खासियत है, और ये लिखते हैं तो हम इसी तरीके से, मैंने एक स्टडी की है क्लस्टर, केवल फोकस है क्लस्टर एनालिसिस पे, टॉपिक मॉडलिंग पे, और मैंने ऐसे ही छोटे छोटे क्लस्टर्स बना के
किया है और वो पेपर एक्सेप्ट हो गया। तो सॉफ्टवेयर के मैनुअल में कभी नहीं कहता कि कैसे आपको करना, इट्स योर आइडिया कि आप इसको कैसे समझ सकते हो। ओके, सो वंस यू क्लिक ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, इससे जितना जो पास पास के नोड हैं, जो बड़े नोड्स हैं इन डिफरेंट कलर्स, हाउ द कीवर्ड्स आर कनेक्टेड, किस किस एरिया में काम हुआ। सो इफ यू सी एनर्जी सिक्योरिटी का किस किस एरिया में काम हुआ, एनर्जी सिक्योरिटी का काम जो बड़े लेवल पे हुआ है, दैट इज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। Then biofuel, fuel and energy security, biogas and energy security, biodiesel and energy security, energy efficiency and energy security, and economic complexity and energy security, energy sustainability and energy security, बहुत से कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और इस सभी तरह से आप किसी पे भी क्लिक करोगे, मैं अगर बायोडीजल का रिसर्च देखूं तो ये बायोडीजल का है। अगर मैं केवल सस्टेनेबल डेवलप बड़े बड़े नोट्स की बात करें तो देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है। इससे हम टॉपिक भी डिसाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, देखिए ये भी एक बड़ा अच्छा मैप जनरेट किया। तो ये डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड करता है, ग्रुप में डिवाइड करता है टोटल कॉन्सेप्ट को। और उस कलर का कलर भी देख सकते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दैट। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, दैट यू कैन डू, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड कि जब पेपर आप लिखिए तो ब्लैक बैकग्राउंड मत दीजिए, ठीक है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपके देखने के लिए, विजिबिलिटी के लिए अच्छा है। आप चाहें तो इसमें लाइंस भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कर्व लाइन को हटा दीजिए तो थोड़ा सा प्रोफेशनल मैप जनरेट हो जाता है, ठीक है। मैप सेम है बट कलर्ड लाइन नहीं है, ठीक है। आप फ्रेम्स में चाहो तो सर्कल में अच्छा मैप होता है, फ्रेम्स में भी कर सकते हो। कई लोगों को फ्रेम्स पसंद होते हैं, तो मुझे सर्कल पसंद है तो मैं सर्कल ही लेता हूं, ठीक है। सेम वे आपको प्रोसेस, आपका पूरा डेटा बना है, यहाँ सेम प्रोसेस, आपका कुछ करना नहीं है, बस यहाँ जाइए एंड चेंज द थ्रेशोल्ड, प्रोसेस इज सेम, यहां नहीं चेंज कर सकते। ये तो मैप, इस मैप में कुछ भी एडिट हम लोग कर नहीं सकते, हमको करना पड़ेगा फिर से सारे प्रोसेस, ठीक है। इतना समझ में आया? दिस इज नेटवर्क विजुअलाइजेशन। और कैसे ये सारे कीवर्ड ग्रुप्ड है, इट इज ऑन क्लस्टर्स। ये देखिए बहुत सारा क्लस्टर दे दिया है, इतना क्लस्टर्स जरूरी नहीं, ठीक है। हम चाहते हैं थीम हमेशा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स पे होना चाहिए, एटलीस्ट एक क्लस्टर में। अब देखिए क्लस्टर कैसे डिवाइड, सब अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइडेड है। टोटल 16 क्लस्टर्स ने बना दिया, लेकिन 16 क्लस्टर्स की जरूरत नहीं है। यहां पे आप जाइए आइटम्स में, क्लिक ऑन आइटम्स, यहां पे लिखा है टोटल 224 आइटम्स का क्लस्टर बना है, हैविंग थ्रेशोल्ड वैल्यू 2, 16 क्लस्टर्स में डिवाइड है, और हर क्लस्टर में उसका एलिमेंट्स भी लिखा हुआ, ग्रुप ऑफ आइटम, ठीक है। देखिए आप देखिए कि यहां पे 10 क्लस्टर तो 12 आइटम का है, हम चाहते हैं कि थोड़े क्लस्टर कम हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। मैं चाहता हूं एक ग्रुप ऑफ आइटम ज्यादा रहे, सो दैट आई कैन डिसाइड द थीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज मैं बताने जा रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान रखिए। देखिए हर एक क्लस्टर में कितने कीवर्ड्स हैं, सब लिखा हुआ है। क्लस्टर 1 में कितने कीवर्ड्स हैं? 28 कीवर्ड्स। एक तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको ग्रुप कर देता है, ठीक है। एक तरह के जो कीवर्ड्स हैं इट ग्रुप्स, और एक सारे को अगर ग्रुप बना दें, हम 4-5 ग्रुप बना दें, तो उसका थीम लिख सकते हैं कि ब्रॉडर थीम क्या है, ठीक है। तो हम इतने क्लस्टर नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा आइटम है। अब देखिए 12, 14 आइटम पे बहुत है, तो हम
चाहते हैं कम क्लस्टर रहे, कम क्लस्टर रहेगा तो आपका थीम बेटर बनेगा। 2 आइटम पे 4 आइटम पे थीम आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। जितने अधिक कीवर्ड उसका कंसंट्रेशन पता चलेगा कि उसका फोकस क्या है, और ये मैप में आप दिख सकता है। इसमें देखिए ये जो ज्यादा हाईलाइटेड है ना येलो कलर का, दैट इज कंसंट्रेशन, हॉट स्पॉट ऑफ द टॉपिक। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इस क्लस्टर को हमको कम करना है। 16 क्लस्टर हमको नहीं चाहिए, तो 14 आइटम तक का क्लस्टर है। हम चाहते हैं कि मिनिमम जो आइटम हो एक क्लस्टर में 15 तो हो। ठीक है, तो यहां पे जाएंगे, मिनिमम क्लस्टर साइज यहां पे लिखा हुआ है, एनालिसिस में जाइए, गो टू द एनालिसिस, मिनिमम क्लस्टर साइज यहां पे कर दीजिए 15। ये आपके ऊपर है, सॉफ्टवेयर में ये प्रोविजन है। लोग क्या करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट किया है उसी पे काम करने लगते हैं, और उससे वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। कहेंगे 16 क्लस्टर्स में डिवाइड है, 16 थीम में हम क्यों डिवाइड करें? वी आर गोइंग टू राइट सिस्टमैटिक रिव्यूज इन ए थीमेटिक ऑर्डर, और एक तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं सबको क्लब कर रहे हैं, हम कम ग्रुप्स बना रहे हैं, ज्यादा ग्रुप्स की जरूरत नहीं। ठीक है, हैव अप टू 10 क्लस्टर्स, ये ठीक है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सीखा कि कैसे इसको किया जा सकता है। तो मैंने इसमें देख लिया कि 14 आइटम्स वाले भी क्लस्टर हैं, 15 आइटम्स से ऊपर वाले भी हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 15। आप अपने हिसाब से क्लस्टर में देख लीजिए आइटम्स में कि क्या कितने क्लस्टर बने हुए हैं। अगर कम क्लस्टर बने हुए हैं तो इट्स ओके, अगर ज्यादा बने हुए हैं तो बेस्ड ऑन द क्लस्टर साइज यहाँ देखिए 16 फाइटर, या अगर हम 15 का दे देंगे तो हमारे पास कितने क्लस्टर बन जाएंगे? 6 ही क्लस्टर बन जाएंगे। ठीक है, या उससे ये ग्रुप करेगा मैकेनिकल वे से, तो मैंने यहाँ 15 साइज दे दिया, और यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक ऑन अपडेट क्लस्टरिंग। मैप में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, कलर कॉम्बिनेशन में फर्क पड़ेगा। आइटम तो वही है, 2 to 6 कीवर्ड्स का बनेगा, और कितने क्लस्टर में अब हो गया हमारे पास? 10 क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। मतलब एक तरह की ग्रुपिंग ये भी ध्यान रखता है कि क्लस्टर साइज से ग्रुपिंग ऑफ आइटम एक तरह के सिमिलर आइटम पे कोई फर्क ना पड़े। ओके, सो यहां पे देखिए हमने क्या कर दिया, अब हमारा टोटल क्लस्टर कितना है? सेम कीवर्ड्स हैं, कितने क्लस्टर में? 2 to 4 आइटम थे, अब किसमें ग्रुप कर दिया? 10 क्लस्टर में। अब यहां क्लस्टर इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो देखिए हमारे पास कितने ग्रुप हो गए? वी हैव 10 क्लस्टर्स। यानी इस डेटा पे हम 10 थीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस पे काम हो रहा है। ठीक है, इतना सबका हो गया, डन। आप कर लीजिए, तो फिर आगे इसको हम प्रोसेस करते हैं। इट इज ऑलवेज रिकमेंड मैक्सिमम 10, मिनिमम अगर 6, 7, 4, 5 अगर मिनिमम आ रहा है तो इट्स ओके। आप बढ़ा नहीं सकते, घटा जरूर सकते। 1-2 एलिमेंट्स का कोई मतलब नहीं है एक क्लस्टर में मैं हमेशा मानता हूं कि मिनिमम 10 आइटम्स तो होने ही चाहिए, 10 कीवर्ड्स तो होने ही चाहिए, तभी तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका थीम क्या है। तो दिस इज द माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट एक क्लस्टर में मिनिमम 10 एलिमेंट्स होने ही चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, क्लस्टर कम आ रहे हैं ठीक है, लेकिन 1-2 क्लस्टर अगर 1-2 एलिमेंट्स हैं तो उसका आप क्लस्टर भले 3 ही क्लस्टर रखिए, 3 क्लस्टर इज एनफ। मैं दिखाता हूं मैंने कैसे इसी का एनालिसिस लिखा है, वही काम हम लोग करने जा रहे हैं। ऑल्दो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसमें काम करने की कोशिश करेंगे। वो पेपर दिखाना चाहता था आपको, अब मैं अपना पेपर ही दिखाता हूं आपको।
You see what we are going to do. It is one of the most complex analysis. देखिए मैं एकदम सिंपलेस्ट तरीके से बता रहा हूं, अगर एक बार सीख जाओगे. देखिए इस टॉपिक में हमने क्या किया है, हमारे पास कितने क्लस्टर हैं? केवल 5. एलिमेंट्स भी कम है. एक क्लस्टर में हमारे पास 17 एलिमेंट्स हैं, 15 है, 10 का हमने रखा है मिनिमम. और देखिए इसमें हमने थीम्स हमने बना दिया. ठीक है, अब यही काम हम करेंगे. कैसे करेंगे ये आपको बताने जा रहा हूं. और इसी का हमने क्लस्टर एनालिसिस किया है, थीमेटिक एनालिसिस, एंड दिस इज सिस्टमैटिक रिव्यू. अगर आप इसको इंक्लूड करोगे, इसी को बोलते हैं हम टॉपिक मॉडलिंग. अभी आगे करेंगे एडवांस. तो काम हम एकदम राइट डायरेक्शन में है. इसीलिए मैं पेपर भी आपको साथ में दिखा रहा हूं कैसे हम लोग लिखेंगे. आपको पूरा प्रोसेस में बताऊंगा, लिखना कैसे, डेटा कैसे लेना. अब सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये है कि इस डेटा को एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, यूज कैसे किया जाए. ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, क्लस्टर एनालिसिस बन गया. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज हमारा होगा. अब देखिए दिस इज अबाउट, आप किसी भी क्लस्टर को इसमें लेंगे. जब पहले बनाया था मैप तो थोड़ा अलग था, क्योंकि क्लस्टर उसमें ज्यादा थे. इसमें क्लस्टर्स कम है. इसमें देखिए अभी ज्यादा बड़ा नोड दिखाने लगा, साइज ऑफ द नोड. अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं, आप देखिए बॉटम पे द डेटा इज कीप चेंजिंग. बॉटम पे आप देखिए लिख रहा है एनर्जी सिक्योरिटी. ये किस क्लस्टर में है? इट्स शोइंग दैट इट इज इन क्लस्टर 10. लिंक कितने हैं इसमें? टोटल जो लिंक है अलग अलग कीवर्ड से, कितने लिंक है? 66. टोटल लिंक की स्ट्रेंथ मींस थीमेटिक कितना क्लोज है और कितना थिक है वो लिंक. ये देखिए हर एक लिंक की साइज एक नहीं है. ठीक है, और कितना क्लोज है उसको बोलते हैं टोटल लिंक स्ट्रेंथ. और टोटल मिला के अकरेंस कीवर्ड्स का उस क्लस्टर में जितने एलिमेंट्स हैं उसका अकरेंस टोटल कितना है? 54 है ना. ऐसे सभी के साथ है. अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे जाओगे तो इसका देखो अलग दिखेगा. रिन्यूएबल एनर्जी किस क्लस्टर का पार्ट है? यानी इसका कोर थीम क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है ना. एंड दिस इज सिस्टमैटिक रिव्यू. सिस्टमैटिक रिव्यू का मतलब होता है वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द इंटायर लिटरेचर को हम क्लासिफाई कर रहे हैं. दिस इज द टॉपिक मॉडलिंग एंड लिटरेचर क्लासिफिकेशन. ठीक है, कि हम एक तरह के कॉन्सेप्ट को एक साथ ग्रुप कर दे रहे हैं. वोस वीवर का केवल मकसद ये नहीं है कि विजुअलाइज कर देना. आप मोस्ट ऑफ द स्टडीज में देखोगे सिंपली दे हैव विजुअलाइज्ड डेटा. क्लस्टर एनालिसिस, टॉपिक मॉडलिंग नहीं करते लोग. करते भी हैं तो बड़ा सुपरफिशियल करते हैं. मैं आपको तरीका बता दूंगा हाउ टू आइडेंटिफाई द थीम्स और कैसे लिखना है. एंड वी आर गोइंग टू ऐड दिस इन आवर वर्जन 1. ठीक है, पहले डेटा तो करके देखे. तो वी आर गोइंग टू यूज 2 सॉफ्टवेयर्स, बिब्लियोमेट्रिक्स एज वेल एज रोजबीवर. और पेपर आपका तभी एक्सेप्ट होगा. देखिए सेम तरीका मैं बता रहा हूं जो मैं पेपर में लिखा हूं. ठीक है, कैसे लिखना, इट्स वेरी सिंपल टू यूज. ये सारा डेटा निकाल के देता है. ठीक है, कैसे करना है उसको हम लोग सीखेंगे. सो नाउ आई गॉट द क्लस्टर. अब देखिए इसके साथ एक और विजुअलाइजेशन है, दैट इज नोन एज ओवरले विजुअलाइजेशन. क्लिक ऑन द सेकेंड टैब. गॉट द आइडिया? सेकेंड टाइप सबका ओपन हो गया. ये मैप उससे डिफरेंट आपको दिख रहा होगा. वहां पे क्लस्टर दिया हुआ है. देखिए यहां पे क्या दिया है? इवोल्यूशन. इसको बोलते हैं ओवरले विजुअलाइजेशन. इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इस मैप का काम क्लस्टर एनालिसिस नहीं है, थीमेटिक एनालिसिस नहीं है. लोग क्या करते हैं, सारे मैप अपने दे देते हैं पेपर में. ये मैप का पर्पस ही अलग है. ठीक है, तीनों का काम अलग अलग है.
सो दिस मैप ये क्या करता है, मैं बार बार एक बात बोल रहा था आपको कि व्हाट इज द आपके एक ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च में, जैसे ये हमने पेट्रोलियम जियो पॉलिटिक्स पे काम किया है, सो इस ब्रॉड एरिया में इन पेट्रोलियम जियो पॉलिटिक्स में हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द रिसेंट टॉपिक्स। ट्रेंडी टॉपिक में जैसे दिखा रहा था ना, सेम एज इसमें अलग तरीके से दिखाता है। अब देखिए जो भी पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, ओल्डर कॉन्सेप्ट, सो यहां से जो डेटा हमारा दिया है 2018, आप देखो यहां बॉटम पे एक बार दिया हुआ है ईयर का, ठीक है। तो ब्लू कलर जो डार्क ब्लू है वो है 2018 इस मैप में, और जो येलो कलर है वो सब नए कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अगर पेट्रोलियम जियोपॉलिटिक्स में हमको नए टॉपिक आइडेंटिफाई करने पड़े तो कौन कौन से होंगे, सारे येलो कलर वाले। ग्रीन हाइड्रोजन आ रहा था वहां भी ना, देखो कैसे दोनों का मैप को हमको रिलेट कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन वहां भी आ रहा था, देखो यहां भी आ रहा है, सेम एल्गोरिथम दोनों सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है। जितने येलो कलर हैं ये इस फील्ड में नए टॉपिक्स हैं, जितने येलो कलर हैं ये जो कनेक्ट कर रहा है, इस पे हम नए टॉपिक्स पे रिसर्च कर सकते हैं। देखिए मशीन लर्निंग, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रिड इंटीग्रेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स हमारे पास नए हैं। दीज आर येलो कलर इज न्यू ट्रेंडी टॉपिक्स। तो इस मैप का भी हम यूज कर सकते हैं टू हैव अ ट्रेंड्स टू न्यू टॉपिक्स इन द एरिया ऑफ जियो पेट्रोलियम जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। आइडिया हो गया इसका। इस मैप का क्या यूज है, इस मैप का नेटवर्क विजुअलाइजेशन नहीं है, एंड इट इज नॉट फॉर क्लस्टर, एक क्लस्टर वाइज डिवाइस नहीं किया है, इट इज इवोल्यूशन टाइप, हाउ द कॉन्सेप्ट हैव बीन इवॉल्व। जो उसमें ट्रेंडी टॉपिक था वही मैप इसमें अलग तरीके से, देखिए ये मैप ज्यादा बेटर है उससे, ठीक है। सो वी हैव टू कोरिलेट बोथ द सॉफ्टवेयर स्टडीज, और हम बहुत अच्छा मैप हम लिखते हैं। देयर इज अनदर डेंसिटी विजुअलाइजेशन, इस पे जाइए। Clicked on density visualization, done. Now you are getting a different kind of map. देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई इस तरह से हाईलाइट नहीं होता। देखिए डेंसिटी बताता कि किसी कॉन्सेप्ट का डेंसिटी क्या है, मतलब कौन से कॉन्सेप्ट उसके नियर बाई एक फोकस एरिया में है। अब देखिए एनर्जी सिक्योरिटी अगर बात करें तो ये जितने येलो कलर वाले हैं, दिस इज द हॉट स्पॉट ऑफ द टॉपिक्स, और जितने ये डार्कर हैं दीज आर द ओल्डर कॉन्सेप्ट, ये न्यूअर कॉन्सेप्ट्स हैं। हॉट स्पॉट मतलब अभी दुनिया में रिसर्च किस पे फोकस है, पूरी दुनिया का रिसर्च वो है एनर्जी सिक्योरिटी पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, बायोफ्यूल एंड बायोगैस पे, बायोडीजल पे। ये जितना डार्क येलो दिखा रहा हॉट स्पॉट वो सेंटर्ड है। तो हम इस मैप से लिख सकते हैं, इसका डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट दैट द होल ओवर वर्ल्ड व्हाट इज द एकेडमिक डिस्कोर्स ऑन पेट्रोलियम जियोपॉलिटिक्स इज, किस पे रिसर्च फोकस है, केंद्रित किस पे है, इन दीज टॉपिक्स। तो ये भी लोग इंक्लूड करते हैं, बट इट इज द ब्यूटी ऑफ आप किस तरीके से इस मैप को लिखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ चैट जीपीटी हेल्प नहीं करेगा। यस, चैट जीपीटी का यूज अभी करेंगे, अभी बताते हैं कि हम कितना आसान हमारा काम कर दिया। जो काम मैं 1 महीने में करता था वो काम मैं आधे घंटे भी मुझे नहीं लगता। आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, ये पूरे इन 2 days सेशन, लास्ट 2 days से आपने देखा मैंने कहीं लिखा कुछ। जो क्लरिकल जॉब था उस जॉब को मैंने थोड़ा आसान बना दिया आपने, एंड दैट इज द
use of AI, and it is very much recommended by the Committee of Publication Ethics. और मैं अपने मैन्युस्क्रिप्ट में लिखता भी हूं कि मैंने किस लिए यूज किया है AI। बिल्कुल कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। आप नहीं लिखोगे तो पता तो देखो चल ही जाएगा किसी को, but it better to give declaration that I have used AI assisted technology for grouping the data। ठीक है, अब ये मैप सबके पास बन गया। इस मैप का मतलब समझ में आया तीनों का? तो मैप तो बड़े सुंदर जनरेट करता है, ये सॉफ्टवेयर और भी चीजें बहुत करता है। ठीक है, लेकिन अभी आपके लेवल पे सिस्टमेटिक रिव्यूज में हम बहुत ही सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द सिस्टमेटिक रिव्यूज जो लिख रहे हैं लोग वो उस व्यूअर का यूज नहीं करते, बिकॉज दे सिंपली दे आर फोकस्ड ऑन लिटरेचर क्लासिफिकेशन, नॉट द थीमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन। और सिस्टमेटिक रिव्यू का कोर ही है टॉपिक मॉडलिंग। सो वी आर गोइंग टू नो, इसको बोलते हैं क्लस्टर एनालिसिस, टॉपिक मॉडलिंग, और ये भी थीमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, थीमेटिक एनालिसिस। तो ये काम हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका एनालिसिस कर लें और डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें, फिर आगे बात हम लोग करेंगे। ठीक है, इतना डन है? सब लोग अपने इस पेज पे आ गए? डन? आगे बढ़े? पीछे हो रहा है? कुछ लोग सर पकड़ के ऐसे बैठे हुए। टुडे इज लास्ट डे, छुटकारा मुझसे भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो कैसे इसको करना है अब समझिए। फिर फाइल वाले में जाइए, क्लिक ऑन फाइल। अब इसके ये जो विजुअलाइजेशन है इसको हमको कैप्चर करना है। ठीक है, और देखो रिकमेंडेड तरीका ये है कि आप क्लस्टर के साथ ले लो, और एक तरीका ये भी हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं है कि क्लस्टर के साथ लो, आप सीधे एनालिसिस लो और फिर उसके क्लस्टर एनालिसिस बाद में टेबल फॉर्मेट में लिख दो। मैं दोनों करता हूं, आई टेक स्क्रीनशॉट रेदर देन। तो अभी सिंपल वो करने के लिए तरीका मैं क्या करता हूं, मैं इस क्लस्टर को विजुअलाइज कर देता हूं यहाँ पे बॉटम में, जिससे पता चले कि कौन से कलर कौन का क्लस्टर्स को डिनोट करता है। ठीक है, और मैं यहां से क्या करता हूं, इन जनरल आई टूक स्क्रीनशॉट। ओके, मैं इस पूरे मैप का एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और उसी को यूज करता हूं फॉर क्लस्टर एनालिसिस के। आप चाहो तो डिफरेंट कर सकते हो। अब मैं स्क्रीनशॉट लूंगा तो आप कहोगे सर मेरा स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मैं इस स्टेप को मैं इस तरीके से करता हूं, लेकिन आपको सिंपलेस्ट तरीका बता दे रहा हूं फॉर लर्निंग पर्पस। यहां एक ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट, लेकिन दिक्कत है कि ये स्क्रीनशॉट करेगा तो जरूर, लेकिन क्लस्टर साथ में नहीं दिखाएगा। क्लस्टर के लिए आपको यहां विजुअलाइज करके साथ में लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट, क्लस्टर के साथ ही इसका मैप जनरेट नहीं होता। अब हमने डेटा सेट्स, यहाँ पे एनालिसिस, आई क्रिएट अ न्यू फोल्डर, मैं व्यूअर, आप एक फोल्डर बना लीजिए वो उसका। ठीक है, कि इससे मैं समझ सकूं कि ये कितने क्लस्टर का है। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा, इस फाइल का नाम दे दूंगा क्लस्टर। कितने कीवर्ड थे? 2 to 4 कीवर्ड। ठीक है, कितने क्लस्टर में है? 10 क्लस्टर। फाइल नेम सही आपको देना पड़ेगा, ये जरूरी है क्योंकि याद रखना पड़ेगा ना कितने पे मैप जनरेट किया। 10 क्लस्टर्स, और कितना थ्रेशोल्ड वैल्यू था मेरा वो भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि मैप कितने कीवर्ड पे जनरेट हुआ है। तो मैप जनरेट हुआ है हमारे पास 2 to 4 कीवर्ड पे। कितने क्लस्टर में है? 10 क्लस्टर्स में है। और कौन सा कीवर्ड लिया है? दैट शुड बी रिमेंबर ऑथर कीवर्ड। इसलिए मैं कह रहा हूं फाइल नेम सही दीजिए सो दैट यू कैन रिमेंबर।
ये तो आप सेव कर लेंगे केवल कीवर्ड एनालिसिस, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कितने पे मैप जनरेटेड। ओके, जस्ट सेव इट। ठीक है, आप फाइल नेम कुछ भी दे दीजिए। आई सेड दैट गिव फाइल नेम मीनिंगफुल। मैंने फाइल नेम, आप अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए जो आप देते हो 1 2 3 ABC, आप तो देते हो यही फाइल नेम, अपना नाम दे दोगे तो कैसे समझ में आएगा। मैं तो कह रहा हूं आई एम जस्ट सेइंग दैट गिव फाइल नेम मीनिंगफुल सो दैट कि हमको याद रहे, बिकॉज इट्स स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। तो वैल्यू नहीं पता रहेगी तो लिखोगे कैसे। इन ऑल द वर्जन 1 वी ड्राफ्टेड, हमने सारे वैल्यूज को लिखवाया इसीलिए ना कि सो दैट वी कैन राइट द वैल्यूज। वैल्यू नहीं लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है। नाउ यू गॉट। ठीक है, अब हमारे पास एक मैप हमारे पास बन गया है। अब हमको इस मैप की थीमेटिक एनालिसिस करनी है, क्लस्टर एनालिसिस करनी है। कैसे? इस तरीके से। वो क्यों हमने वो किया है, देखो जैसे मैंने लिखा है ना, इस मैप जनरेट किया, मैं साथ साथ दिखा रहा हूं इसीलिए कि आप देखो कि मैंने कैसे किया। व्हाट आई रिटेन, नेटवर्क विजुअलाइजेशन किया, कितने कीवर्ड, 66 कीवर्ड्स का, इसीलिए। ठीक है, और कितने क्लस्टर में डिवाइड हुआ ये भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो टोटल कितने क्लस्टर हमारे बने हैं इसमें, 5 क्लस्टर्स। अब ये हमको टेबल बनानी है। ठीक है, आप देखो जो एनालिसिस में आ रहा है वो उस व्यूअर में, वो केवल कीवर्ड्स आ रहा है, बाकी इसमें और इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है ना। तो पहले इस सॉफ्टवेयर में लिमिटेशन थी। यू आर लकी कि ये सॉफ्टवेयर लास्ट अपग्रेड में इन्होंने एक फीचर ऐड कर दिया। पहले हम अलग एक सॉफ्टवेयर यूज करते थे टू एक्सट्रैक्ट दैट डेटा। अब ये सॉफ्टवेयर ने लास्ट अपडेट में वो उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसमें हम जाएंगे फाइल में, और जो वैल्यूज हैं सारी, टोटल लिंक स्ट्रेंथ, सारी वैल्यूज हम एक्सपोर्ट करेंगे इसका, इस क्लस्टर का रिजल्ट। ठीक है, इसको सेव कैसे करेंगे इस डेटा को कि फ्यूचर में आप अगेन मैप जनरेट करोगे तो कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, और आप खुद ही कलर कॉम्बिनेशन आपको नहीं पसंद मैप आए तो इसमें से आप चेंज करते रहोगे तो ये चेंज हो जाएगा कलर। ठीक है, तो अगर मैप पसंद ना आए विच हैज बीन जनरेटेड बाय मशीन तो आप कलर चेंज कर सकते हो। मुझे कभी आज तक लगा नहीं कि कलर चेंज करने की जरूरत है, लेकिन गर्ल्स को बहुत लग सकता है। ठीक है, कि कलर नहीं समझ में आ रहा है, कलर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बॉयज के लिए तो 4 ही कलर होते हैं, गर्ल्स के लिए डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। इस डेटा को हमारे कितने क्लस्टर्स हैं, फॉर माय टॉपिक इट इज 10 क्लस्टर्स। ओके, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग सो, हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू टॉपिक मॉडलिंग। ये छोटे छोटे क्या है आइटम्स, ये टॉपिक्स है ना, इसलिए ये टॉपिक्स की मॉडलिंग कर रहे हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि पूरा जो लिटरेचर है वो किस ब्रॉडर थीम पे ग्रुप्ड है। अब टोटल लिटरेचर तो हमारे पास काफी थे, 350 400 थे, आपके 1000 भी हो सकते हैं, 4000 भी हो सकते हैं। अब हमने उसको थीम वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सॉफ्टवेयर इसलिए बना नहीं है, बट यस वी कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर लाइक दिस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गो टू द फाइल। ठीक है, क्लिक ऑन सेव, क्लिक ऑन सेव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, पहले ये नहीं था, जस्ट इट हैज बीन अपडेटेड। तो ये इतना अच्छा इसने कर दिया इसको, अदरवाइज वी वर यूजिंग अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर नोन एज गेफी।
गेफी सॉफ्टवेयर यूज करते थे, वो भी बहुत अच्छा नेटवर्क विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। तो वहां से क्लस्टर एनालिसिस हम डेटा एक्सपोर्ट कर लेते थे। अब यहाँ पे फाइल नेम देना है, ठीक है। फर्स्ट यू सेलेक्ट द लोकेशन, ये सेव कर रहे हैं आप। सेव करने के लिए कोई चीज सेव करते हो तो यू हैव टू गिव द फाइल नेम। हमको जरूरत होगी वोस बीवर मैप फाइल, जो ये मैप बना है ना, ठीक है, इसकी हमको फाइल, नेटवर्क फाइल की आपको अभी लेवल पे जरूरत नहीं है। यस, हम लोग जब एडवांस लेवल पे जब काम करते हैं टॉपिक मॉडलिंग में तो नेटवर्क फाइल की भी जरूरत होती है। आप केवल एक करिएगा, वोस बीवर मैप फाइल, ये है ना। यहां पे जाइए, सेलेक्ट द लोकेशन, सेव कर रहे हैं, हम लिखेंगे वोस मैप फाइल, ठीक है। यहां पे आप देखिए टेक्स्ट फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हो और यहां से आप CSV में भी सेव कर सकते हो, ठीक है। आप इसको मैप फाइल, मैं इसको लिख देता हूं क्लस्टर, जो स्टेप बता रहा हूं यू शुड फॉलो। ये मुझे ही सीखने में इट टुक्स मी 5-6 मंथ, ठीक है। आपके लिए तो मैं 2 घंटे में बता दूंगा। CSV फाइल कर लोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, वो दिखेगा हमको क्लस्टर, ठीक है। अब सारा जो क्लस्टर का डेटा है, कौन सा डेटा, जो ये बॉटम पे आ रहा है ना, अब देखिए बॉटम पे क्लस्टर नंबर 10, लिंक कितना है, टोटल लिंक की स्ट्रेंथ कितना है, ये सबको हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं मैप फाइल। नेटवर्क फाइल की अभी जरूरत नहीं है, दूसरा जो बॉक्स है अभी उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यस, उसका यूज है लेकिन आपके लेवल पे अभी नहीं, ओके। जो हमको काम करना है उतना हमारा काम इससे हो जाता है। जस्ट सेव इट, ओके कर दीजिए, सेव हो गया, यू सेव दैट फाइल। अब मेरे पास, मैं जाऊंगा अपने एनालिसिस में, ठीक है, वो उसमें जाऊंगा तो यहां पे हमारे पास एक मैप फाइल बन गई, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा ये इंटरेस्टिंग डेटा हमारे पास है। ये इतना कॉम्प्लेक्स टास्क था पहले कि हमको एक समय ऐसा भी था कि हम वहां से कॉपी पेस्ट करते थे। आई हैव रिटन सो मेनी पेपर, कितना डिफिकल्ट मेरे पास था, बिकॉज देयर वेयर नो प्रोविजन। ये क्या करते थे, एक एक हम आइटम पे जाते थे, एक एक क्लस्टर पे, ठीक है, इस आइटम पे जाते थे, इसका सारा डिटेल लिखते थे, कट कॉपी यहां टाइप करते थे, एक्सपोर्ट भी नहीं होता था, और सबका लिंक यहां देख देख के नीचे ये सब चेंज हो रहा है, देखो वैल्यू ना, सबका अलग अलग मैं लिखता था, सेम टेबल एक्सपोर्ट हो गया। पहले हमको मैनुअली करना पड़ता था। हाँ मैम, हाँ ब्रेक लेना है, हाँ ठीक है, चाय पी लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। मैं फिर से प्रोसेस बता दे रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। और बिब्लियोमेट्रिक कर रहे हो, सिस्टमेटिक रिव्यू कर रहे हो तो ये पार्ट जरूर करो। मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट डू दिस स्टेप इन सिस्टमेटिक रिव्यू, वो केवल फोकस करते हैं लिटरेचर क्लासिफिकेशन पे, उससे कुछ होगा नहीं। लिटरेचर क्लासिफिकेशन को पहले थीम वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पहले थीम्स को आइडेंटिफाई करें कि हाउ द लिटरेचर हैज बीन क्लासिफाइड इन डिफरेंट थीम्स, ब्रॉडर फोकस, तब तो हम उसमें सिस्टमेटिक लिटरेचर को क्लब करेंगे। लोग मेन इंपॉर्टेंट स्टेज ही मिस कर देते। मुझे भी नहीं समझ में आता था कि आखिर में क्यों ऐसे करें, लेकिन बाद में पढ़ते पढ़ते करते करते एंड आई हैव रीड लॉट्स ऑफ पेपर, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, पहले थीम्स आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है rather than लिटरेचर क्लासिफिकेशन। और इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द स्टडी जो मैं करता हूं तो मैं उसमें सिस्टमेटिक रिव्यूज भी करता हूं और बिब्लियोमेट्रिक भी करता हूं, बिकॉज किसी भी पेपर में, सिस्टमेटिक रिव्यू पेपर में देयर आर 2 पार्ट्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, बिब्लियोमेट्रिक्स एनालिसिस एंड लिटरेचर क्लासिफिकेशन, दैट इज सिस्टमेटिक। दोनों पार्ट करना जरूरी, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच। फिर लंच टी करते हैं, उसके बाद फिर रीअसेंबल्ड होते हैं। ठीक है, आज हमारे पास टाइम कम है, 5 बजे तक का ही टाइम है। ठीक है, तो आप 5-10 मिनट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। Dear participants, it's only a break of 5 minutes. Get back by 5 minutes later. इतना हो गया ना सबका? ये हाँ, उसी पे काम कर रहे थे। वो सीट हमने, आप टेक्स्ट फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल में ज्यादा अच्छा काम करता है। मैं तो इस